Assalamu alaikum dear students. Welcome to Introduction to Bioinformatics class. This is our lecture number 5. So let's have a recap. We have done previously the introduction to molecular biology, and then we have got through the structure of cell, and then we have discussed about the different types of organisms, and then we have also seen the characteristics of living organism, that how we become alive, and we have seen the differences between the cell types of eukaryotes and prokaryotes, and then we have seen there is a sizes and lifespan of a cell, and what makes the cells. Basically we need uh, and there is inside a cell there are some organelles which perform some functions to produce and to grow, and there is a then we have discussed about protein in details, and we started from the insulin and leptin as an example. So today's content is about amino acids. Basically, we have talked about proteins previously, and then we discussed how proteins become or synthesize in the cell. So where is the recipe of proteins, and we have or understand that जैसे कि हमने बात की कि जो प्रोटीन की रेसिपी है दैट इज़ अवेलेबल ऑन द DNA, because protein is also a part of a genetic material, and so जो जब proteins बन जाती हैं तो basically वो कहाँ से बन रही हैं. So this is a part of a DNA. You can say that there is an information encoded over DNA, जहाँ से हमें पता चलता है जब वो DNA to RNA कन्वर्जन होती है, दैन फिर RNA से ट्रांसलेशन होती है अमाइनो एसिड्स की. तो वी कैन से दैट कि प्रोटीन की रेसिपी जो है वो आपको DNA से मिल जाती है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं इन दिस टुडेज कंटेंट, एंड देन हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे. देयर आर 20 अमाइनो एसिड, एंड we will discuss about to the that how these 20 amino acids are different to each other. Then there is a cell as an energy factory. अच्छा, सेल में जो एनर्जी फैक्ट्री है उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड देयर आर सम सरप्राइजिंग फैक्ट्स अबाउट अमाइनो एसिड्स. Okay, let's talk about amino acid. As we have discussed already that जैसे कि DNA से RNA कन्वर्जन हो रही है, and that RNA is a mature RNA जिससे हम RNA अमाइनो एसिड को ट्रांसलेट करते हैं, कोड करते हैं with some rules. Okay, so we talked about the chains of amino acid, but actually never said what they are. Now is the time. So जैसे कि आपको अमाइनो एसिड का जैसे वी हैव टॉक्ड अबाउट इंसुलिन में हमारे पास 51 अमाइनो एसिड की एक चेन होती है जो एक प्रोटीन बनाते हैं, दैट इज़ इंसुलिन. सो नाउ अमाइनो एसिड इज सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड. अमाइनो एसिड होता है क्या, एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिल एसिड होता है, देन अमाइनो ग्रुप होता है, एंड देयर इज़ अ साइड चेन जिसको हम आर ग्रुप भी कहते हैं. सो दिस इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड. ये आपके पास जो लेफ़्ट साइड में है NH2 जो है वो आपका अमाइन ग्रुप है, और COOH जो है वो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, एंड जो सेंटर में आपको ये आर ग्रुप और साइड चेन नज़र आ रही है. सो दिस इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड. सो इट इज़ अ साइड चेन दैट डिफाइंस द अमाइनो एसिड. जैसे कि मैंने अभी आपसे पहले भी बात की थी कि अमाइनो एसिड की जो साइड चेन है उससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है. ओके, अबाउट 500 अमाइनो एसिड्स आर नॉन, दो ओनली 20 अपीयर लिविंग इन ऑर्गेनिजम्स. ओके, हाँ, 500 अमाइनो एसिड्स आर नॉन बायोलॉजिकली. साइंटिस्ट हैव discovered 500 amino acids, but जो हमें 20 amino acids हैं वो these are present in the organisms or living organisms, और उनको basically उन 20 amino acid को हम decode कर सकते हैं.
through the translation process. So which is not entirely true. Biology is full of exceptions, but this is not the right time to bother with them. Okay, as we know that there are many diseases are occurring day by day, many changes are occurring in humans and other living organisms day by day. So we scientists are searching and doing research on it, and आप ये कह सकते हैं कि हमें there are many exceptions in this in the biology field, because आप जो researchers हैं day by day new discoveries कर रहे हैं, new discoveries जो genetic material में जो changes आ रहे हैं उन्हें discover कर रहे होते हैं. So we are not going in detail at this time. So some side chains are quite simple, as we have talked about कि जो side chain है amino acid पे, उसके side chain से हम define करते हैं कि which amino acid is that. So side chain for amino acid called glycine. Okay, if we are talking about the simplest the most simplest amino acid from the 20 amino acid is glycine, because इसका जो side chain है that is consist of single hydrogen atom. So this is the chemical structure of the glycine. ये आपका right side पे आपको NH2 नज़र आ रहा है. This is the carboxyl group COOH, और this is the single atom of the hydrogen in glycine. So here all the 20 side chains and names of their corresponding acids, corresponding amino acids. So some are hydrophobic, and some are polar uncharged, and some are polar charged. Okay, in which these are all are the 20 amino acids when you will translate from RNA to amino or proteins. Okay, the first one is alanine, valine, leucine, isoleucine, methionine, phenylalanine, tyrosine, tryptophan, serine, threonine, asparagine, glutamine, glycine, proline, cysteine, histidine, lysine, arginine, aspartic acid, glumatic acid. Basically these are the 20 amino acids, or इसमें you can see that alanine has a short if we want to write it with the 3 letters ALA. Okay, and in the same way अगर आप दूसरे amino acid की basically when we denote while using ALA or with the single letter A, in the same way बाकी भी हम सारे amino acids में 3 लेटर के साथ भी डिनोट कर सकते हैं और सिंगल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं. और इसमें के आगे जो आपको CH3 नज़र आ रहा है, दिस इज़ द साइड चेन फार्मूला. सो द मोस्ट सिंपलेस्ट वन इज़ ग्लाइसिन. यू कैन सी कि यहाँ का इसमें जो साइड चेन है वो सिंगल हाइड्रोजन एटम है. सो हर अमाइनो एसिड का यहाँ पर आपको साइड चेन डिफरेंट नज़र आएगा, जिससे हम कह रहे थे कि वी कैन डिफ्रेंशिएट among different amino acids. So proteins are the chains of amino acids. Amino acids, single amino acid is a monomer, as a single unit. So they are actually made by stitching amino acid together in a row one by one. One by one जब राइबोसोम RNA को स्कैन कर रहा होता है, और स्कैनिंग मीन्स दैट के राइबोसोम्स में अमाइनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हो रही होती है, एंड RNA से जो सीक्वेंस आ रहा है उसमें वो 3 लेटर्स जो RNA के होते हैं बेसिस होते हैं, उनको वो अमाइनो एसिड उसमें सिंथेसिस उनकी सिंथेसिस हो रही है, एंड वन बाय वन अमाइनो एसिड जो है वो पॉप अप हो रहे हैं उसमें से, और मेकिंग अ chain of amino acid, and that chain of amino acid will become a particular protein. So this process is called polymerization, when amino acid are coming out of राइबोसोम्स, और अमाइनो एसिड एक दूसरे से स्टिच्ड है किसी फोर्स की वजह से, किसी बॉन्डिंग की वजह से. ओके, और वो वन बाय वन जब उसकी सिंथेसिस हो रही है, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे. और इसके बाद आता है कंडेंसेशन. दैट कंडेंसेशन रिएक्शन where 2 amino acids are stitched together
अच्छा, कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे दो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में स्टिच होते हैं वाया पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड carbon atoms. So here is a graphical depiction of the process. ये दो अमाइनो दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टू अमाइनो एसिड जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं विद द पेप्टाइड बॉन्ड. दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड जो आपको ब्लू शेडेड रीजन जो है वो आपको दो अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आ रही है. ठीक है, बिल्कुल राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर में आपको NH2 नज़र आ रहा है और दिस इज़ द साइड चेन. और साइड चेन के बाद आपको कार्बोक्सिल ग्रुप मिलेगा और कार्बोक्सिल ग्रुप और सेकेंड अमाइनो एसिड का अमाइनो के साथ अमाइनो ग्रुप के साथ दोनों की जब कॉम्बिनेशन हो रही होगी देन देयर इज़ अ पेप्टाइड बॉन्ड जो एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन कर रहा है. Okay, a peptide bond is a chemical bond formed between two molecules when the carboxyl group of one molecule reacts with the amino group of the other molecule. As I have already discussed कि एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप होगा. दे आर कमिंग टुगेदर टू लाइक जब वो दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे विद द पेप्टाइड बॉन्ड. सो अच्छा, अब जब ये दोनों अमाइनो एसिड जब कंबाइन हो रहे होंगे तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा. सो दिस इज़ द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन ऑल्सो नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन. तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि कंडेंसेशन रिएक्शन में हमारा एक लाइक इट्स अ प्रोसेस when it is coming together, both amino acids are coming together and making a peptide bond in between them. और उसमें हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O वो रिलीज़ हो जाएगा और उसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं एंड ऑल्सो इट इज़ नॉन एज कंडेंसेशन रिएक्शन. सो अगेन यू कैन सी दैट दिस इज़ द अमाइनो एसिड 1 एंड दिस इज़ अमाइनो एसिड 2. अब इन दोनों अमाइनो एसिड्स को हमने कंबाइन व्हेन दे विल स्टिच टुगेदर. ये आपको एन टर्मिनस नज़र आ रहा है जो हमारा अमाइनो ग्रुप का जो साइड है दैट इज़ एन ग्रुप सॉरी एन टर्मिनस एंड देन दिस इज़ द सी टर्मिनस. सो अदर अमाइनो एसिड हैज़ द एन टर्मिनस एंड द सॉरी अमाइनो एसिड 1 का आपको का जो सी टर्मिनस है और अमाइनो एसिड 2 का एन टर्मिनस जब कंबाइन होंगे तो इनके दरमियान जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से ये दे विल स्टिच टुगेदर. सो you can see this green color is the peptide bond और ये अमाइनो एसिड 1 और अमाइनो एसिड 2 के दरमियान जो है इनकी बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पर when they combine to each other water molecule will get release. So cell as an energy factory. To dive deeper in trying to understand what is the role of protein in the cell, consider glycolysis. अच्छा, अब अगर हम प्रोटीन के प्रोसेस या उसकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें सेल बेसिकली वेयर प्रोटीन इज़ प्रेजेंट, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जो कि हमने ऑलरेडी जो सेल के स्ट्रक्चर में देखा. देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है. जेनेटिक मटेरियल में DNA है और DNA ने रिप्रोड्यूस करना है, रेप्लिकेट होना है और ट्रांसलेशन होनी है टू मेक प्रोटीन्स. तो अब प्रोटीन के रोल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को अगर हम समझ लें तो वी विल अंडरस्टैंड मोर इजीली. सो दिस इज़ वन ऑफ द एसेंशियल प्रोसेस एंड अकर्स इन नियरली ऑल ऑर्गेनिजम्स. जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस प्रेजेंट होता है. सो इट स्टार्ट्स विद द ग्लूकोज विच इज़ कन्वर्टेड टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स pyruvate in a sequence of 10 enzyme catalyst reaction. अच्छा, अब जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है उसमें 10 सीक्वेंस ऑफ 10 रिएक्शंस होते हैं. ग्लूकोज से ग्लूकोज जो है वो एंट्री पॉइंट है एंड पायरुवेट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द ग्लूकोज आफ्टर कन्वर्टिंग.
और इन ग्लूकोज से पायरुवेट तक पहुंचने के लिए इसमें 10 एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस जो हैं वो सीक्वेंस में परफॉर्म होते हैं. सो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जो फ्री एनर्जी है दैट विल बी रिलीज इन द प्रोसेस, और जो दैट एनर्जी विल स्टोर इन अ हाई एनर्जी कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ATP, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एंड NADH, रिड्यूस निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड. ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं इनमें हाई एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, और ये सब किस में हो रहा है, ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हो रहा आता है. सो टू सिंप्लीफाई, ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट्स शुगर इनटू एनर्जी. जैसे शुगर से एनर्जी कन्वर्ट होती है दैट इज स्टोर्ड इन द सेल. सो फॉलोइंग इज द schematic presentation of reaction that take place. This is the graphical view of the glycolysis process. You can see this is the glycolysis and this is the final stage of the pyruvate. अब ये वन ग्लूकोज से कन्वर्जन होगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इसमें एंजाइम यूज़ होता है हेक्सोकाइनेज. अब यहाँ पर ATP बेसिकली एनर्जी रिलीज़ हो रही है एंड स्टोर हो रही है. अच्छा, इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और इसमें एंजाइम यूज़ हो रहा है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज. ओके, फिर नेक्स्ट कन्वर्जन हो रही है फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में, और इसमें जो कन्वर्जन स्टेप के लिए जो एंजाइम यूज़ हो रहा है दैट इज़ काइंड सॉर्ट ऑफ अ प्रोटीन दैट इज़ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. एंड द नेक्स्ट वन इज़ it divided into two, that is dihydroxyacetone phosphate, then glyceraldehyde 3 phosphate. इनमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है दैट इज़ फ्रुक्टोज बाइफॉस्फेट एल्डोज और ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज. इन द सेम वे दिस इज 1,3 phosphoglycerate, and then 3 phosphoglycerate, and then 2 phosphoglycerate, phosphो enol pyruvate, PEP भी हम इसको कहते हैं, and the final stage is pyruvate. Basically this is all step belongs to the glycolysis. This is the glycolysis pathway, and you can also say that it is the this is the metabolic pathway. So मेटाबॉलिक पाथवे में जैसे कि हम मेटाबॉलिज्म की अगर बात करते हैं, दिस इज़ द स्टेप प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो मेटाबॉलिज्म की अगर बात करते हैं तो व्हाट इट हैपन्स, कन्वर्जन ऑफ फूड टू एनर्जी मीन्स दैट कि जो फूड है उससे हमें एनर्जी में कन्वर्जन होती है. देन दिस एनर्जी विल हेल्प अस टू रन सेल्यूलर प्रोसेस. उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फूड से हम क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको जो है वो फ्यूल मिल रहा है एज अ फॉर्म ऑफ फूड या एनर्जी. ओके, फिर इसके बाद मेटाबॉलिज्म में और स्टेप्स कौन से होते हैं, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. जितने भी वेस्ट है उनको जो है वो एंजाइम्स के थ्रू रिमूव किया जाता है. और इसके अलावा एंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शन अलो ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, कुछ ऐसे कैटलिस्ट और एंजाइम्स होते हैं दे रिएक्टेड एंड अलो ऑर्गेनिजम्स टू reproduce, to grow, or to maintain their structure and respond to their environment. जितने जो सेल का स्ट्रक्चर है, सेल की प्रोसेस है, कंट्रोल उसको सबको कंट्रोल करने के लिए ये सारे प्रोसेस जो है वो मेटाबॉलिक या मेटाबोलाइट्स होते हैं, या ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ये सब होता है. Okay, so as a cell as an a cell as an energy factory. Chemicals like glucose, fructose 6 phosphate and others, जितने भी हमारे ये chemical compounds हैं, molecules हैं, glucose 6 phosphate और बाकी जितने भी chemicals हैं that are an entry of final or intermediate products of the chemical reactions. जितने भी metabolites हैं, these are the entry, intermediate and final products of the chemical reactions. Okay, so glycolysis is then a metabolic pathway.
So how we can say that कि glycolysis is also the metabolic pathway, and I have discussed already कि metabolic pathway में हमारे पास क्या क्या होता है. फूड से हम एनर्जी में चेंज करते हैं, और सेलुलर प्रोसेस को रन करने के लिए मेटाबॉलिक पाथवेज में जो फंक्शनैलिटीज़ है, ये रोल होता है वो सेलुलर प्रोसेस को रन करने के लिए. फूड जो बिल्डिंग ब्लॉक्स को चाहिए होता है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और बाकी सब कार्बोहाइड्रेट्स है. इसी तरह से एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल है, एंड सो ऑन. सो यू कैन रीड अबाउट मोर डिटेल इन मेटाबॉलिक पाथवे कि ये कुछ पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपको इस मेटाबॉलिक पाथवे और ग्लाइकोलाइसिस को अंडरस्टैंड करने में इजी होगा. ऑल द रिएक्शंस इन ग्लाइकोलाइसिस आर catalyzed by enzymes, और enzymes क्या होते हैं? These are the proteins that push the reaction which without them would not take place. Okay, अब ये जो proteins है basically these are also the catalyzed enzymes, और इनके बगैर जो है वो रिएक्शंस जो हो रहे हैं ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज 6-phosphate में जो कन्वर्जन्स हो रही है, दैट वुड नॉट टेक प्लेस विदाउट प्रोटीन्स या कैटलाइज्ड एंजाइम्स. सो प्रोटीन्स इन दिस पाथवे हैव स्ट्रेंज नेम्स फॉर अ कंप्यूटर साइंटिस्ट आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमेंबर. अच्छा, अब ये हमारे लिए दीज एंजाइम नेम्स एंड केमिकल रिएक्शंस, अगर हम इनके नेम्स याद करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, और हम very strange how we can understand these things. But the basic thing is that you just know the concept of what is protein and what are the enzymes, or ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में मेटाबॉलिक पाथवे का क्या रोल है. और इफ़ यू अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली सेल की ग्रोथ, डेवलपमेंट और जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस हैं उनको कंट्रोल करता है. Okay, proteins in this pathway have a strange name. Okay, we have discussed already this one. Say to convert glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate, the reaction involves enzyme called phosphofructokinase. जैसे कि ग्लूकोज 6-phosphate में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, फ्रुक्टोज 6-phosphate है, तो इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है दैट इज़ फोस्फोग्लूकोज आइसोमरेज. तो इस रिएक्शन के बगैर जो है ये कन्वर्जन वाज इम्पॉसिबल. So luckily we will not need to remember any of these, but it is at this stage essential to know that almost no reaction in living organism would take place without them. अच्छा, अब हमें इन reactions के enzymes और reactions के names याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. We just need to know the basic knowledge of glycolysis. What is glycolysis? What are the metabolites? तो we understood that we were talking about amino acid, and amino acid is this long chain of proteins are the includes the long chain of amino acid. So you got to know that कि इन enzymes जो proteins है इनके बगैर जो है ये reaction जो है वो impossible है. So proteins are therefore essential part of the metabolic pathways, and these are what makes the cells alive. अब सेल को alive रखने के लिए मेटाबॉलिक पाथवे बहुत ज़रूरी है, और इनको रिएक्ट करने के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है. सो सम मोर सरप्राइजिंग फैक्ट, द साइज ऑफ द टिपिकल प्रोटीन इज़ 5 नैनोमीटर. एज वी नो दैट कि जो सेल हमारी बॉडी के या ह्यूमन बॉडी या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक. और अब यू कैन सी दैट कि जो मिल्की वे है या गैलेक्सी है उसमें जो स्टार्स हैं उसमें भी हमारे 200 टाइम्स मोर जो है वो हमारे सेल्स हैं. अब सेल्स के अंदर जो है सेल्स के अंदर एवरी सेल हैज़ अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, एंड दैट जेनेटिक मटेरियल मेक्स द प्रोटीन. तो प्रोटीन्स बेसिकली आई वांटेड टू टेल यू दैट कि द साइज ऑफ द टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो है वो 500 म्यूमीटर है. सो यू कैन सी दैट कि जो प्रोटीन का साइज है विच इज़ द मोस्ट स्मॉलेस्ट दैन द सेल, बिकॉज सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है, और द डायमीटर ऑफ द सेल इज़ अबाउट 10,000 टाइम्स बिगर इन डायमीटर दैन एवरेज प्रोटीन. अच्छा, अब जो सेल का जो विच इज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल. अब सेल का जो डायमीटर विच इज़ द 10,000 टाइम्स जो है वो प्रोटीन के साइज से
बिगर है. सो वी हाउ डज दैट रिलेट टू, उसका जो वॉल्यूम होगा तो वो कैसा होगा. इन केस there are about 1 billion protein molecules in each cell. हर सेल में 1 billion protein molecules are present. So there are overall but about 2 billion different proteins in human organisms. तो 2 billion different types of proteins जो है human organisms है. और जो longest one जो है that is एक जो कोई प्रोटीन है उसमें जो अमाइनो एसिड की जो चेन लेंथ है दैट इज़ 27,000. सो सम सरप्राइजिंग फैक्ट्स आर प्रोटीन्स हैव देयर लाइफ स्पैन. जैसे कि सेल का लाइफ स्पैन है, इसी तरह से प्रोटीन का भी लाइफ स्पैन है. दे ग्रो, दे डाई, एंड दे कंट्रोल द सेलुलर फंक्शनैलिटीज़. दे डू नॉट लास्ट फॉर एवर. जैसे ह्यूमंस की एक लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है. दे हैव टू उनकी बर्थ होती है एंड देन फिर वन डे दे बिकम डाई. इसी तरह से सेल्स की भी लाइफ स्पैन और प्रोटीन्स की भी लाइफ स्पैन होती है. सो दे डिग्रेड इन अ मैटर ऑफ आवर्स. कुछ ही घंटों में वो जो प्रोटीन्स हैं वो डिग्रेड भी हो जाते हैं. सो now is the question, somebody has to make proteins, who, where. As we have already discussed कि proteins को वो जो है प्रोटीन्स कैसे बन रही है जेनेटिक मटेरियल में, और वो सेल की कहाँ किस पोर्शन में या कौन से ऑर्गन्स हैं जो प्रोटीन्स बना रहे हैं. सो दिस क्वेश्चन शुड बी कम इन टू योर माइंड कि ये सब कैसे हो रहा है. सो इज़ देयर अ फैक्ट्री फॉर ईच ऑफ द 2 बिलियन डिफरेंट प्रोटीन्स. जो 2 बिलियन डिफरेंट प्रोटीन्स like they are synthesized and then they are degrade as well in a matter of hours. तो 2 बिलियन प्रोटीन्स जो है वो कैसे मैनेज हो रही है, और उनकी ऐसी कौन सी मशीनरीज हैं, सेल की कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोटीन्स को बना रहे हैं. सो और इज़ देयर अ सिंगल फैक्ट्री, क्या वो सिंगल फैक्ट्री है या कोई उनकी कोई रेसिपी है, और वो रेसिपी कहाँ पर मिलेगी आपको. So this is the question for the next lecture, and we will discuss this recipe in the central dogma of molecular biology. So thank you for today's lecture.